Okay, students. So on similar basis, let us move on to the next 11th question. Limit extending towards 0. This is 1 minus cos 2x upon cos 2x minus cos 8x. Now, what does the method say, students? That always divide numerator and denominator by x square. तो सबसे पहले हम x square से divide कर लेंगे. Okay? We can do other way round also. पहले हम formula भी use कर सकते हैं and then we can divide by x square. Or first we can divide by x square and then apply the formula. Both the ways are absolutely okay. Now, since in the previous problem we have first divided by x square then applied the formula. Now in this problem let us first apply the formula then divide. फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे. चलो तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. Therefore L is equal to limit x is tending towards 0. ठीक है. Now recollect the formula for 1 minus cos 2 theta. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. So 1 minus cos 2x is nothing but 2 sin square x. Okay, upon apply the formula for cos c minus cos d. 8x 2x से बड़ा है तो cos c minus cos d का formula apply करो आप. Obviously you know it because you have already done the previous example and we have learned in trigonometry also. तो cos c minus, check, this is 8x बड़ा है 2x से, तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. तो 2 sin c plus d by 2, so that will give us 5x into sin d minus c by 2 will give us 3x. फॉर्मूला अप्लाई किया 1 minus cos 2 थीटा का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में cos c minus cos d का फॉर्मूला. ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया. Now what does the method says? Always divide numerator and denominator by x square. तो लिखो आप स्टेटमेंट, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x square. आप लिखो नोटबुक में, आई एम डिक्टेटिंग. डिवाइडिंग numerator and denominator by x square. ठीक है. So when we divide by x square, let's see what is going to happen. Therefore L is equal to limit x is tending towards 0. ये हो जाएगा sin square x upon x square. ठीक है. This will be what, sin 5x into sin 3x by x square. दोनों को x square से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी x square से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी x square से हमने डिवाइड किया. ओके. नाउ आई जस्ट रब दिस ऑफ. ठीक है. एंड दिस टू. ये भी रिजल्ट फिलहाल मैं रब कर देता हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल बी रिटन एज sin x अपॉन x द होल स्क्वायर हो जाएगा. और ये जो x स्क्वायर है, एक x इसको जाएगा, एक से एक x इसको जाएगा. नाउ यू कैन इवैल्यूएट एंड यू कैन टेल मी द आंसर. चलो प्लीज डू इट अहेड. न्यूमरेटर विल बी रिटन एज sin x अपॉन x द होल स्क्वायर. ऐसा आप लिखो. तो therefore L is equal to limit x is tending towards 0. न्यूमरेटर में sin square x upon x square will be written as sin x upon x the whole square. और डिनोमिनेटर में one of that x goes with sin 5x and another x goes with sin 3x. ऐसा, and the bracket closes. चलो इवैल्यूएट एंड टेल मी द फाइनल आंसर. हो गया कि फाइनल आंसर बताओ. One by 15. Yes, 1/15. करेक्ट, एब्सोल्युटली. अच्छा, वहां पे थोड़ा जरा ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है. तो दिस इज sin x अपॉन x द होल स्क्वायर इन द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है. एंड अपॉन x दोनों को स्प्लिट हो गया. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. 1/15 इज द राइट आंसर. अब देखो क्या हो जाएगा. यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. अभी लिमिट स्प्लिट होने के बाद
ऊपर जो sin x बाय x है वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे sin 5x बाय 5x 1 हो जाएगा, यहाँ पे sin 3x बाय 3x 1 हो जाएगा। तो एवरीथिंग जितने भी साइन वाले टर्म है वो सब 1 हो जाएंगे। द फाइनल आंसर एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट टू बी इवैल्यूएटेड इज 1/15। प्रॉब्लम इज ओवर। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल्स दे आर, प्रोवाइडेड वी नो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, so the value of this limit is to be evaluated is 15. To see all the combinations we have seen, न्यूमरेटर में cos c minus cos d, यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos c minus cos d, x tan x वाला केस ले लिया हमने, एक x sin x वाला केस ले लिया हमने, एक 1 minus cos mx वाला केस ले लिया हमने। ठीक है, तो if whatever is missing it can be asked, हो सकता है sin square x पूछेंगे, tan square x पूछेंगे, आप डिवाइड बाय x square से डिवाइड करो, do it and follow the example. In this angles will change, these changes can be made. न्यूमरेटर में cos c minus cos d, डिनोमिनेटर में cos c minus cos d, दोनों में ऊपर भी cos c minus cos d, नीचे भी cos c minus cos d, ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जांपल्स है। ठीक है, तो एट दैट टाइम यू कैन नॉट शेयर सर ने हमको ये नहीं सिखाया, ये दिया नोट लिख के। ओके, एंड 3 प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी डन ऑन दैट। क्वेश्चन नंबर 12, 12th question we move on to। लिखो L is equal to limit x is tending towards 0। ओके, क्वेश्चन आप लिखो 2 sin x minus sin of 2x by x cube। okay, chalo let's do this example। This question, if it is asked in exam, this is going to carry 3 marks and put a star over this also। ये सब स्टार वाले प्रॉब्लम है, इसलिए वो स्टार रब नहीं कर रहा हूं मैं। They are all very important questions। okay, now observe, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0/0 फॉर्म है, तो वी कैन पुट x is equal to 0। ठीक है, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि अपॉन में x क्यूब है, अपॉन में x होता तो स्प्लिट होके हो जाता। एक एग्जांपल हमने लास्ट टाइम किया था जिसमें अपॉन x था, आप चाहिए तो नोटबुक में देख लो, उसमें अपॉन x हमने स्प्लिट करके किया था, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल। तो डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं होगा, x का वैल्यू 0 नहीं डालना है। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड बी डन इन दिस प्रॉब्लम? एनी आइडिया दैट यू कैन गिव मी? Sin Formula 2x. sin 2x. वेरी गुड, एब्सोल्युटली, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। यहाँ पे हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो sin 2 थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है। रिकलेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज व्हाट आई से। मैं एक ही वर्ड बोलना है मेरे को, रिकलेक्ट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। L is equal to, देखो लिमिट x is tending towards 0, 2 sin x remaining same, sin 2x will be written as 2 sin x cos x। okay, upon in the denominator this is x cube। obviously a question may come to your mind, sir हमको कैसे मालूम पड़ेगा, मैंने बताया कैसे मालूम पड़ेगा, what is to be done। okay, now you observe, दोनों टर्म्स में से 2 sin x is common to them, so therefore L is equal to limit x is tending towards 0, in the numerator we take 2 sin x common, 2 sin x common लेंगे, so we are left out with 1 minus cos x by x cube। 2 sin x taken common from both of them। okay, now two things we do at the same time students। दो चीजें हम करेंगे यहाँ पर कि एक तो ये कांस्टेंट है 2, ये जाएगा लिमिट के बाहर, फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड थिंग दैट वी डू, यहाँ पे जो x क्यूब है दिस कैन बी रिटर्न एज x इंटू एक्स स्क्वायर। टू थिंग्स वी डू, टू कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, x क्यूब है उसको हम x इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, उसमें से जो एक x है
x जाएगा sin x के साथ, x will go along with sin x and x square will go along with 1 minus cos x. Why? Check this, ये result है उसके वजह से. Okay, so write down next step after this. So this is further equal to 2 constant है outside the limit. So now what is left out inside the limit, student? So it is sin x by x. देखो वापस बताता हूँ. 2 लिमिट के बाहर गया, sin x के अपॉन में x आएगा और 1 माइनस cos x के अपॉन में x स्क्वायर आएगा. कंपलसरी है, वी डोंट हैव अ चॉइस. ओके, नाउ इट्स क्लियरली विजिबल कि ये जो लिमिट है ये दोनों को स्प्लिट होगा, इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा. स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है. sin x upon x is going to become 1 according to the result. So लिखो what is left out. This is further equal to 2 limit x is tending towards 0 sin x by x becomes 1. डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. into 1 minus cos x by x square is going to remain same. ये 1 हो गया, ये सेम रहेगा. अच्छा, 1 into any function तो ये सेम ही रहेगा. ठीक है, it is going to remain same. So see what we have done. First we have applied sin to theta का formula. 2 sin x कॉमन लिया, कांस्टेंट को बाहर लिया, डिनोमिनेटर स्प्लिट किया और फिर sin theta by theta वाला रिजल्ट अप्लाई किया. Now for your reference I will write down one more step. ये फॉर्मूला मैं रब कर देता हूँ. Okay, now what is going to happen after this, you know, ये 1 into this, तो ये आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ. Therefore L is equal to 2 limit x tends to 0. This is nothing but 1 minus cos x by x square. ऐसा आएगा. 1 into है तो वो 1 हटा दिया हमने, into है तो doesn't matter because it is 1 only with it. Okay, now observe this part. So can anyone tell me how will we evaluate this? इसको कैसे solve करेंगे हम? Any idea? How will we evaluate this limit? Using formula. Now either use formula method or okay. So now just tell me, ये 2 तो सेम रहेगा. What will be value of this limit? इसका वैल्यू क्या है आपको? एरो डाला इसका 1/2. एग्जैक्टली 1/2 बराबर. एंड 2 तो पहले से ही है तो 2 into 1/2. आंसर फॉर द प्रॉब्लम इज 1. तो ये जो प्रॉब्लम है इसका जो लिमिट का वैल्यू है दैट इज 1. देखो इसका वैल्यू हाफ आएगा आपको. वी हैव डन इट अर्लियर एंड एज आई सेड अर्लियर, पहले भी मैंने आपको बता चुका है. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है ऐसा एग्जांपल. ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So please note down the next question, 13th one. This also can be asked for 3 to 4 marks. So star तो पहले से है 3 or maybe for 4 also, weightage wise. Okay. अच्छा, अभी undoubtedly since we are having x sin x, we need to divide it by x square. ठीक है, तो as I said, dividing numerator and denominator by x square करना है as I have given you in writing earlier. बट उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले x स्क्वायर से डिवाइड करो या बाद में x स्क्वायर से डिवाइड करो. तो लेट अस डिवाइड बाय x स्क्वायर लेटर ऑन. नाउ यू हैव टू चॉइस. एक तो देखो ये डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं हो सकता. x का वैल्यू 0 डालोगे, x का वैल्यू 0 डालोगे तो sin a प्लस sin a इज 2 sin a. 2 sin a माइनस 2 sin a, न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर इज 0. तो ये 0/0 फॉर्म का प्रॉब्लम है. ठीक है, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते, 0/0 फॉर्म में लिमिट नहीं डाल सकते, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते. तो कोई तो तरीका होना चाहिए. अब इसमें 2 ऑप्शंस है, इनफैक्ट 3 ऑप्शंस है, बट वी विल गो विद द इजियर वन.
लेट मी एक्सप्लेन। देखो हर एक का थिंकिंग अलग अलग रहता है, आप दूसरे वे से थिंक कर सकते हो, कोई और स्टूडेंट है वो और दूसरे थर्ड वे से, कोई थर्ड स्टूडेंट है और थर्ड वे से थिंक कर सकता है ना। तो फर्स्ट थिंकिंग इज दैट स्टूडेंट को ये देख के याद आता है, हाँ साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, थिंकिंग इज करेक्ट बट दैट वे इज लेंदियर, फर्स्ट थिंकिंग। अच्छा सेकंड थिंकिंग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, दिस इज सेकंड थिंकिंग। कोई दूसरा ऐसा सोच सकता है कि हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थर्ड थिंकिंग इज वेरी सिंपल, we will apply defactorization formula on this। ये थर्ड और सिंपल वाला थिंकिंग है। नाउ रिकलेक्ट द फॉर्मूला फॉर 2 sin a sin b, और इनफैक्ट यू कैन सी साइन ऑफ साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला देखो, दोनों साइन फंक्शन ना, 2 sin a cos b। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज 2 sin a cos b का फॉर्मूला? Do you Sin recall A 2 sin? plus B plus sin A minus Very good, absolutely। So 2 sin a cos b is nothing but students sin of a plus b plus sin of a minus b, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? 2 sin a cos b का। तो तीन थिंकिंग हो सकते हैं यहाँ पे, तीनों करेक्ट है, ऑल द थ्री वेज आर करेक्ट, बट सबसे इजी कौन सा है? तो ये है, ठीक है। तो वी विल बी अप्लाइंग, उल्टा अप्लाई करेंगे। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक किया तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला हमने ऐसा अप्लाई किया, बट इट इज एप्लीकेबल दिस वे आल्सो। चेक sin of a plus b plus sin of a minus b, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप। तो पहले आप आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख लो, प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला। लिमिट x is tending towards 0, 2 sin a cos b, ये देखो sin of a plus b plus sin of a minus b, that is nothing but 2 sin a is small a into cos x, b के जगह पे x है। चेक दिस आउट, ये फॉर्मूला इस पूरे टर्म पे अप्लाई होगा। तो ये 2 sin a cos x हो गया माइनस 2 sin a remaining same, 2 sin a remaining same, sorry, and this is divided by x sin x। Please check the steps. Step formula हमने अप्लाई किया। Now see from both the terms, we can take 2 sin a common, but if I take 2 sin a common, ब्रैकेट में cos x minus 1 बचेगा। तो instead of taking 2 sin a common, I will be taking minus 2 sin a common। राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप। आपको समझेगा आगे जाके क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। L is equal to, राइट ऑन, लिमिट x is tending towards 0 minus 2 sin a taken common, minus 2 sin a कॉमन लेना है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स? विल बी लेफ्ट आउट विथ 1 माइनस cos x अपॉन x sin x is already there। प्लीज चेक, आई एम गोइंग स्टेप वाइज, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ स्टेप्स को। Okay, I repeat, sin of a plus b plus sin of a minus b is nothing but 2 sin a cos b। फिर उसमें से माइनस 2 sin a कॉमन लिया। अच्छा ये कैसे मालूम पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा, अरे हाँ 1 माइनस कॉस थीटा है ना, उसका फॉर्मूला है, या कॉन्जुगेट ले सकते हैं, इसीलिए माइनस 2 sin a कॉमन लिया है ना। दिस शुड बी अ थिंकिंग प्रोसेस। ओके, नाउ माइनस 2 sin a इज अ कांस्टेंट, तो दिस गोज आउटसाइड द लिमिट, माइनस 2 sin a कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखो इसके बाद, माइनस 2 sin a कांस्टेंट, तो इट गोज आउटसाइड द लिमिट। तो अभी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अभी लिमिट के अंदर क्या बच गया स्टूडेंट्स? तो इट इज 1 माइनस cos x बाय x sin x रिमेन्स। राइट डाउन, माइनस 2 sin a कांस्टेंट है तो वो लिमिट के बाहर गया,
limit x is tending towards 0, 1 minus cos x upon x sin x. ठीक है? Now please try to understand, -2 कांस्टेंट है वो तो समझ में आता है, बट व्हाई sin a इज अ कांस्टेंट? sin a को हम कांस्टेंट क्यों बोलेंगे? आप बोलोगे सर sin cos फंक्शन तो कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लिमिट देखो x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x का है, और ये जो फंक्शन है दिस इज sin a. तो a तो कांस्टेंट है ना, तो sin a कांस्टेंट है, तो sin a इज आल्सो अ कांस्टेंट. Since a is a constant, sin a is also a constant, it comes outside the limit. मतलब आप ऐसा याद रखो स्टूडेंट्स कि अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, जो x वाला टर्म नहीं है वो कांस्टेंट है. Am I clear with this? Why sin a also comes outside everyone? Yes, sir. Okay. हाँ, तो प्लीज रिमेम्बर दैट. अच्छा, नेक्स्ट है, सपोज अगर कोई t वाला प्रॉब्लम है, तो t वाला प्रॉब्लम है तो उसके लिए t बाहर नहीं आएगा. सपोज इफ इट इज दिस वे, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन समथिंग. आई गो टू सम एग्जांपल आल्सो. सपोज सर देयर लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x into sin t दिया है, x into sin t दिया है. अच्छा, अभी इसके लिए इज x अ कांस्टेंट? जस्ट टेल मी यस और नो. x कांस्टेंट है क्या इसके लिए? कैन यू टेल मी, इज x अ कांस्टेंट लिमिट t Yes. टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के लिए? यस, एब्सोल्युटली, वेरी गुड. x इज अ कांस्टेंट. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 दिया है, x के बारे में वो बात नहीं कर रहा है. x तो कांस्टेंट है, t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो t वाला टर्म बाहर नहीं आएगा. से फॉर एग्जांपल और एक ले लेता हूँ. दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिजिक्स में भी लगेगा, मैथ्स में तो लगने वाला है. सपोज अगर मैं लिखूं लिमिट थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, t इनटू से फॉर एग्जांपल tan थीटा लिखा. नाउ इज t अ कांस्टेंट ओवर हियर? Yes. यस, इट्स अ कांस्टेंट ओवर हियर. बट सपोज अगर मैंने इस t के जगह पे अगर सपोज थीटा लिख दिया, नाउ इज थीटा अ कांस्टेंट नाउ? No. नो, एब्सोल्युटली. तो थीटा इज नॉट अ कांस्टेंट. तो जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट नहीं होगा. वैसे यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट है, तो sin a लिमिट के बाहर आ गया. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विथ. अभी ये जो लिमिट सॉल्व करना है ना स्टूडेंट्स, ये जो इवैल्यूएट करना है, इसमें 2 से 3 मेथड है. देयर आर 2 to 3 ways with which we can solve this example. So let us check this out how this can be evaluated. Okay. So let's check this out how it is to be evaluated. I need to rub this off. Give me 1 minute. Okay.